So today's topic is data protection. In this, we will cover threats, malware, virus, spyware, adware, and spamming. So let us see what do you mean by threats. Threats to data, which is stored in our computer systems. A threat is a potential violation of security. जानबूझ करके कोई सिक्योरिटी तोड़ करके डेटा चुराना चाहे, this is an example of threat. When a threat is actually executed, it becomes attack. And those who execute such actions or cause them to be executed are known as attackers. Now, there are some common threats. Let us see them in this list. So these are viruses in which we will cover worms or trojans, spyware, adware, spamming, PC intrusion, in which we will cover denial of service, sweeping, password guessing, etc., and phishing. So after that, we will discuss about computer viruses. Computer viruses, these are malicious programs that cause damage to data and files on a system. Viruses can attack any part of computer software, such as boot area, system files, application macros, etc. Boot area is that area in your hard disk where the instructions to start your computer are stored. Second point, other similar programs also cause virus-like effects. These are worms and trojans. Let us see them one by one. Worms. A worm is a self-replicating program which eats up the entire disk space or memory. It keeps on creating its copies until all the memory is filled. एक बार अगर worm किसी के कंप्यूटर में आ गया, वो अपने आप को मल्टीप्लाई करता चला जाता है जब तक कि पूरी हार्ड डिस्क फिल नहीं हो जाती. Trojan horses, these are also programs that appear harmless but actually perform some malicious functions like deleting or damaging files, etc. Let us see these three different types of malicious programs. Okay, first let me tell you what are malicious programs. In general, these malicious programs are known as malware, in which most of the things which does malicious things are covered. So malware is a general term used to refer to viruses, worms, spyware, adware, etc. In other words, it is unwanted software that someone has wants to run on your computer. Malware infects your computer, making it behave in a way which you do not approve of. See this image. All these are types of malwares. We have spyware, ransomware, Trojan horse, remote access, worm, keylogger, viruses, adware. All these are malicious programs or in general malwares. So here we have a difference between worms, viruses and Trojan horses.
Let us see first point. Worms can self-replicate. जैसे अभी अभी हमने पीछे देखा था worms के बारे में. They can self-replicate. अपने आप की copies बनाते चले जाते हैं. Viruses can also self-replicate. Trojan horses, they cannot self-replicate. Second point, worms, they do not need to attach themselves with existing programs. ये अलग से ही छोटे छोटे प्रोग्राम्स की फॉर्म में डाउनलोड हो जाते हैं. वायरस दे अटैच themselves with existing programs. फॉर एग्जांपल आपने कोई सॉन्ग डाउनलोड किया या कोई ऐप डाउनलोड किया या कोई भी XYZ फाइल आपने इंटरनेट से डाउनलोड करी, उसमें वायरस हो सकता है. इसका मतलब वायरस हमेशा अपने आप को अटैच करते हैं किसी दूसरी फाइल से. Trojan horses, they cannot self-replicate and they use social engineering techniques to spread. For example, spread करने के लिए आप blog use कर सकते हैं या email IDs use कर सकते हैं, like that. And at the bottom we have 3 images, screenshots of different types of worms, viruses, etc. These are all examples कि वायरस होते कैसे हैं. Let us see. यहाँ पे लिखा हुआ है एक नाम, intrusion का नाम, MS ASNI integer overflow TCP, and risk level is high. So this is a worm. There is another list at the center. We have the different malicious programs like Trojan, email worm, Trojan downloader, adware, etc. Okay. Now, damage caused by viruses. वायरसेस क्या क्या नुकसान कर सकते हैं. दिस इज वेरी जनरल टर्म. नॉर्मली आप कुछ सालों से इसके बारे में पढ़ते आ रहे हैं, बट स्टिल आप जो नोट्स आपको दिए जाएंगे वो नोट्स आप लर्न करिए बार बार. यू विल गेट गुड मार्क्स. लेट अस सी दीज 3 पॉइंट्स. डैमेज कॉज्ड बाय वायरसेस. सम वायरसेस में डिलीट रैंडम फाइल्स और सम may delete specific files that are crucial for your system, such as operating system files. कुछ वायरसेस कोई भी फाइल डिलीट कर देंगे और कुछ वायरसेस जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको डिस्टर्ब कर सकते हैं, उसकी फाइल्स को डिलीट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम या एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, इनकी अपनी कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स होती हैं एंड ऑल दीज फाइल्स आर क्रूशियल फॉर योर कंप्यूटर. अगर उनमें से कोई एक फाइल डिस्टर्ब हो गई, रीनेम हो गई या डिलीट ही हो गई तो आपका सिस्टम ही खराब हो जाएगा, सिस्टम काम नहीं करेगा. सेकेंड पॉइंट, वायरसेस कैन रन इन बैकग्राउंड एंड मे कॉज द कंप्यूटर एक्सट्रीमली स्लो. भाई ये तो आपको पता है कि वायरसेस हमेशा बैकग्राउंड में ही रन करते हैं, हमें तो दिखता नहीं सामने वायरस आ गया. सो दे रन इन बैकग्राउंड एंड मे ऑक्यूपाई योर रैम, और आपका कंप्यूटर स्लो हो सकता है. सम वायरसेस मे इन्वेड योर ईमेल प्रोग्राम. आपके ईमेल प्रोग्राम के अंदर वो घुस करके अपने आप को दूसरे लोगों तक पहुंचा सकते हैं by spreading themselves to the contacts in your address book. Next, all of you please write your name in chat box for attendance. Spyware. You know what is a spy? चोरी छिपे नजर रखना है ना. Okay. Spyware is a software which is installed on your computer to spy on your activities and report this data to people willing to pay for it. लोग स्पाईवेयर बनाते हैं जासूसी करने के लिए, तो हिंदी में तो जासूसी ही बोलेंगे. तो स्पाईवेयर इज अ वेरी स्मॉल सॉफ्टवेयर
जो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाएगा, पता भी नहीं लगेगा कब इंस्टॉल हो गया। एंड इट विल रिकॉर्ड एवरीथिंग, आप कौन सी की दबा रहे हैं, क्या चीज प्रेस करते हैं, बार बार क्या, कौन सी साइट ओपन करते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड इट विल रिपोर्ट ऑल दिस डेटा, ये सारा डेटा, सारी इंफॉर्मेशन उन लोगों को जाएगी जिन्होंने वो स्पाइवेयर आपके कंप्यूटर में डाला, बिकॉज दे आर विलिंग टू पे फॉर इट। कंपनी का डेटा चुरा करके भेजा जाता है यूजिंग स्पाइवेयर। नेक्स्ट पॉइंट, इट ट्रैक्स द यूजर्स बिहेवियर and reports information back to a central source. It tracks the user behavior. For example, अगर कोई इंटरनेट पर गेम्स ज्यादा सर्च करता है, he is addicted to games, तो उसका बिहेवियर पता लग गया, स्पाइवेयर ने पता लगाया कि एवरी टाइम ही इज क्लिकिंग ऑन गेम्स वेबसाइट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वो सारी इंफॉर्मेशन कहाँ जाएगी, कहीं सेंट्रल सोर्स पर जाएगी। देन दैट सेंट्रल सोर्स can ask somebody or can himself send related messages to that person, like to purchase new games, etc. Next is these are used to spy on someone either for legal or illegal purpose. It means spying legal भी है। For example, if there is a large company and the owner of company want to keep a check on his employees, कि वो एम्प्लॉइज हमेशा अपने कंप्यूटर में करते क्या रहते हैं, तो दैट इज अ टाइप ऑफ स्पाइंग ना, सो दैट इज लीगल, ही कैन वॉच। ओके, last point, downloaded from the internet. Spyware is always downloaded from the internet, and when you visit a particular website along with some pop-ups, etc. Damage caused by spyware. Spyware can record the keystrokes that you use while typing in a credit card number and send this number to a cyber thief. की स्ट्रोक्स का मतलब जो भी की आप दबा रहे हैं, मान लो क्रेडिट कार्ड का नंबर आप एंटर कर रहे हैं या पासवर्ड एंटर कर रहे हैं, जो कीज आपने दबाई वो स्पाईवेयर ने रिकॉर्ड कर ली। दैट इज व्हाई यू हैव टू बी वेरी केयरफुल while doing transactions on internet, money transactions especially. Second, it can alter PC settings, कंप्यूटर की settings change हो जाना, जैसे web browser homepage settings or the placement of desktop icons. It can slows down your computer speed and internet access. There are various damages caused by all these malwares. You can write in your own language also. Adware. These are the programs that deliver unwanted ads to your computer. Normally जब हम कोई वेबसाइट ओपन करते हैं, सपोज आपने amazon.com ओपन किया, वहां पर कोई शूज आपने सर्च किए, शूज सेलेक्ट किए, उसको बंद कर दिया। नेक्स्ट टाइम यू मे सी डिफरेंट पॉपअप्स ऑफ एडवर्टीजमेंट्स ऑफ शूज ओनली। तो हर बार शूज के ही ऐड कहीं ना कहीं आएंगे। आपने ट्विटर ओपन किया, वहां शूज, आपने कोई और फेसबुक ओपन किया, वहां पर फिर से शूज, ऐसा होता है। दिस इज एन एडवेयर। So these are the programs that deliver unwanted ads to your computer. They consume network bandwidth. यानी आपकी जो नेटवर्क की रेंज है वो कम हो जाती है, इससे नेटवर्क स्पीड भी कम हो जाती है। Adware also add very similar to spyware. Sorry, these are very similar to spyware. However, it may be installed with your consent. Spyware की तरह ये आपका डेटा बैकग्राउंड में चोरी कर सकते हैं,
बट स्टिल एक बेनिफिट है। डिफरेंस क्या है कि स्पाईवेयर तो खतरनाक होता ही है, एडवेयर अगर आप चाहो, आपको लगता है कि ये बिल्कुल सही है, आप उसको यूज कर सकते हैं। यू कैन क्लिक ऑन देयर। आपने देखा होगा अगर आप कोई MP3 सॉन्ग डाउनलोड करना चाहें तो डायरेक्टली डाउनलोड का कोई ऑप्शन मिलता नहीं है कि एक ही बार में हो जाए, वेरी रेयर। एड्स आ जाते हैं बहुत सारे सामने, रेक्टेंगुलर विंडो, और लास्ट में कहीं ऊपर कॉर्नर में छोटा सा क्रॉस लिखा होगा, और पर क्लिक हेयर पे लिखा होगा बड़ा बड़ा। यू कैन सी दिस इमेज, यहाँ लिखा है क्लिक हेयर टू डाउनलोड, लिखा है फिक्स विंडोज एरर, और ये ईबे की वेबसाइट पर आया है, तो दिस इज एन एडवेयर। तो अगर किसी ने इस पर क्लिक कर दिया, हो सकता है इसके साथ कोई स्पाईवेयर भी डाउनलोड हो जाए या कोई वायरस डाउनलोड हो जाए। नेक्स्ट, सो damages caused by adware, let us see. Adware tracks information just like spyware, such as pop-up ads, जैसा अभी पीछे देखा था आपने, displays arrays of annoying advertising everywhere and every time on the screen. तो अगर आपने ब्राउजर ओपन किया, ओपन करते ही बहुत सारे छोटे छोटी सी विंडोज दैट आर नोन एज पॉपअप्स ओपन होते चले गए, और फिर आप पहले तो उनको क्लोज करोगे तब जाकर के अपना काम करोगे। सो दिस इज रियली अनोइंग। अगर किसी के सिस्टम में ऐसा हो रहा है, इट मीन्स उसमें 100% वायरस होगा। ऐसे केस में क्या करना चाहिए? ऐसे केस में प्रॉपर लाइसेंस्ड टोटल सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर और एंटीवायरस इंस्टॉल करना चाहिए। एंटीवायरस की भी कई सारी कैटेगरीज हैं, एंड द बेस्ट वन इज टोटल सिक्योरिटी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, डिस्प्लेज, अच्छा ये हो गया। सॉफ्टवेयर वर्किंग इन द बैकग्राउंड and the bombardment of ads can slow your computer। जो भी एडवेयर गलती से आपसे डाउनलोड हो गया, या आपने क्लिक हेयर पे क्लिक कर दिया, कोई और सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड में डाउनलोड हो गया, वो बैकग्राउंड में काम कर रहा है, बट यू आर नॉट एबल टू सी ऑन द स्क्रीन। वो क्या करेगा? आपकी रैम को फिल कर देगा, एंड योर कंप्यूटर विल बिकम वेरी स्लो। नेक्स्ट, नेक्स्ट टॉपिक इज स्पैमिंग। स्पैमिंग मीन्स सेंडिंग ऑफ बल्क ईमेल्स। एक साथ बहुत सारे लोगों को ईमेल्स भेजना, या एक ही इंसान को बहुत सारे ईमेल्स भेजना, दिस इज कॉल्ड स्पैमिंग। स्पैमिंग रेफर्स टू द सेंडिंग ऑफ bulk mail by an identified or unidentified source। आइडेंटिफाइड फॉर एग्जांपल, अगर आपने किसी बैंक वाले से एक बार बात कर ली और उसको ईमेल आईडी प्रोवाइड करा दी, तो फॉर एग्जांपल कोटक महिंद्रा बैंक, तो उसी के ही ईमेल्स बार 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 रोज डेली बेसिस पर आने शुरू हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर एक बार आपने बाईजूस को अपना नंबर या ईमेल आईडी दे दिया, तो डेली बेसिस पर आपके पास मोबाइल पर मैसेजेस या फोन्स या फिर ईमेल्स आने शुरू हो जाएंगे। सो दिस इज कॉल्ड स्पैमिंग। सेकेंड पॉइंट, इन नॉन मैलिशियस bulk advertising mail is sent to many accounts, but in malicious form the attackers keep on sending bulk mail until the mail server runs out of disk space। जैसे बाइजूस है तो वो नॉन मैलिशियस होगा, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, वो बहुत सारे अकाउंट्स में मेल्स भेज रहा है जस्ट फॉर एडवर्टाइजमेंट। पर अगर कोई किसी को परेशान करना चाहता है, दैट मीन्स इन मैलिशियस फॉर्म द अटैकर कीप्स ऑन सेंडिंग बल्क मेल until the mail server runs out of this space। मतलब उसका जो मेल सर्वर है वो इतना फिल हो जाएगा कि जो काम की ईमेल्स हैं वो भी उसको नहीं मिल पाएंगे। लास्ट पॉइंट, यू कैन नॉट गेट अ वायरस सिंपली बाय रीडिंग ईमेल। आपने ईमेल ओपन किया
तो घबराने की जरूरत नहीं है, आप टेक्स्ट पढ़िए ध्यान से। जब तक आप किसी लिंक पर क्लिक नहीं करेंगे या अटैचमेंट को ओपन नहीं करेंगे, कोई वायरस आपके सिस्टम में नहीं आ सकता। इट इज एक्टिवेटेड ओनली व्हेन यू क्लिक अ लिंक इन इट और ओपन एन अटैचमेंट। See here, this is an example of spam message। स्पैम की पहचान बता रखी है यहाँ पे। अगर बहुत कुछ हाईलाइट कर रखा है ऑल कैप्स यूज करके, फ्री, प्रूफ एंड यहाँ देखिए एक्सक्लेमेशन साइन है, ये ट्रिगर फ्रेज कहलाता है। 50% ऑफ, जिससे लोग अट्रैक्ट हों। यहाँ प्राइस दिखा रखा है और देयर इज एन अटैचमेंट। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ही आप ईमेल्स को ओपन करें या इन पर क्लिक करें। देयर इज वन मोर, see this is spam SMS। एप्पल इंक, लगता है कि ये एप्पल कंपनी से आया है। योर iPhone 6 linked to some link has been used a few minutes ago to localize it, log in now to your Apple account। अगर किसी ने इस पे क्लिक कर दिया तो आपकी सारी इंफॉर्मेशन उस तक पहुंच सकती है। So all these are spams। Now damage caused by spamming। Spamming reduces productivity। How? The billions of spam messages circulating across internet can disrupt email delivery and reduce overall productivity। Spams eat up your time। ये आपको डिलीट करना पड़ेगा ना स्पैम, अपनी मेमोरी खाली करनी पड़ेगी। Deleting spam emails seems like simple solution, but it eats off a significant amount of your productivity। जितना टाइम आप डिलीशन में लगाएंगे उतना टाइम आप कुछ अच्छे आइडियाज को इम्प्लीमेंट करने में लगा सकते हैं। तो प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है स्पैमिंग से। स्पैमिंग कैन लीड टू वर्स थिंग्स। स्पैम मैसेजेस में कंटेन ऑफेंसिव और फ्रॉडुलेंट मटेरियल एंड कैन इवन बी यूज्ड टू स्प्रेड वायरसेस। क्योंकि आप जानते हैं वायरसेस, अभी पीछे बताया था, वायरसेस आर अटैच्ड विद सम फाइल्स। किसी के साथ भी वायरस को अटैच करके सेंड किया जा सकता है। So with this, we have finished the topic today। I hope it seems very easy, but you must learn these। And in your book, this is your chapter data protection on page number 483।